Ma'am, good Okay. morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, children. Good morning. Let us start with the lesson. When the assembly will start, I will send you the link for attendance. You'll join the link and you'll give your attendance. Okay, in that way you will Okay, be, ma'am. in that way we'll be utilizing our time. So, see, we were doing the section Adivasis and development, and we saw that this development was having ill effects on the Adivasis, on the Adivasi community. And yesterday we studied about the mining refinery, about the aluminum refinery that was being set up in the Niamgiri hills, and we also saw how these setting up of the refineries and the development of mining activities had an effect on the tribal communities. Okay, now see, we were here on page number 86. If you have your book, you can open up the page number 86, have a look. Okay, Adivasis use around 10,000 plant species. Approximately 8,000 species are used for medicinal purposes. 325 are used as pesticides. Okay, 425 as gums, resins and dyes, 550 as fibers, 300, 3,500 as edible. This entire knowledge system, okay, gets wiped out when Adivasis lose their rights over forest land. Okay, so those who are not having the book, I'm writing it for them. Have a look, children. Adivasis use around 10,000, okay, plant species. तो इतने सारे पौधों की जानकारी, ओके, लगभग 10,000 पौधों की जानकारी उन्हें है. ओके, अप्रोक्सीमेटली 8,000 का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. देखो, अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज are used for medicinal purposes, are used for medicinal purposes. ठीक है ना? हर्षित, I've got your image. Medicinal purposes. Sumit Soni, have you joined? Sumit, this child has given me his number to add him in the group. Okay, तो इसमें से देखो 325 जो है पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है, कीटनाशक के रूप में. ओके, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 425, 425 गम्स, रेजिन्स जो है किशमिश को कहते हैं. ओके, रेजिन्स किशमिश को कहते हैं, एंड डाइज. देन वी हैव 550 एज फाइबर्स. ठीक है ना? फाइबर में आपका कॉटन और जूट आता है. ओके, 550 एज फाइबर्स एंड 3,500 एज एडिबल. इनको हम खा सकते हैं. एडिबल मतलब कि हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, अब ये जो जानकारी है, इतनी जानकारी पाने के लिए जो है एक व्यक्ति को, हमारे जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को जो है अध्ययन करना होगा, शिक्षा ग्रहण करना होगा, तब जाके हमें ये जानकारी मिलेगी. लेकिन आदिवासियों को जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके एंसेस्टर्स जो हैं ये जानकारी उनको दे रहे हैं. ओके, एंड while just looking at the plants they can find out whether they are edible or whether they are poisonous. Okay, so we see that this entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lose their. Okay, अक्सर ये जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, लूज देयर राइट्स ओवर लैंड. अगर उनको उनके जमीन से हम हटा देंगे तो ये सारी जानकारी भी हमसे दूर हो जाएगी. ठीक है ना? इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर हमें कोई दे सकता है तो वो ये आदिवासी है. ओके, तो इसलिए हमें उनके, हाँ, प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए, हमें उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, ना कि उनके मार्जिनलाइजेशन के प्रति हमें अपनी इच्छा रखनी चाहिए. ओके, सो वी सी दिस is an important information related to the Adivasis. Have a look, children. Another recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced, ठीक है ना, 79% जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों से भारत के, उसमें से सारे जो है ट्राइबल्स ही होते हैं. ओके,
and huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dam. I hope you remember this. Okay, एक समय ऐसा था जब नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया था. इसकी प्रवक्ता कौन थी, कोई बताएगा मुझे? Who was the leader? नर्मदा बचाओ आंदोलन. ओके, नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर जो है ये बांध बना है आपका सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना. इस बांध की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, इस बांध के बनने की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसके खिलाफ जो है बहुत सारे संगठनों ने जो है अपनी आवाज उठाई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन. कैन यू टेल मी द लेडी who gave leadership to this movement? पता है किसी को? See, all are dumb. हर्षित, हाँ, अभिनंदन, किसी को नहीं पता है? हाँ, वो महिला का नाम बताना है आपको जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी. ओके, जो ट्राइबल्स जो थे ना. ओके, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, आपने तवा मत्स्य रिजर्वर के बारे में पढ़ा होगा. आई होप यू हैव स्टडीड अबाउट TMS. यस और नो? हाँ, श्वेतांजलि, तवा मत्स्य संघ के बारे में आपने नहीं पढ़ा है क्लास 7 में? नो मैम. हाउ इज इट पॉसिबल? सिविक्स का चैप्टर है. तवा मत्स्य संघ. It was an organization which was fighting for fishing rights of the people. देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी जब ये सरदार सरोवर डैम का जो है निर्माण शुरू हुआ था. और आज के डेट में आपको पता है कि द हाईएस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, आई थिंक. यूनिटी. यस, स्टैचू ऑफ यूनिटी. ओके, सरदार वल्लभ भाई की जो मूर्ति है उसको जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है. ओके, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है ना, तो ये अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग राजा लोग रूल कर रहे थे. कहीं पे निजाम रूल कर रहे थे, कहीं पे मराठा थे, कहीं पे सिख थे, कहीं पे पेशवा थे. ओके, कहीं पे राजपूत रूल कर रहे थे. ओके, कहीं पे नवाब थे. इन सारे लोगों को समझाना और समझा के इनको एक यूनियन में बांधना. ओके, ये जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया. So what we see that due to the construction of this dam, नर्मदा, ये जो सरदार सरोवर डैम जो बना है, इसकी वजह से कई हजार गांव लुप्त हो गए हैं. ओके, आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, अगर आपकी आदत है डॉक्यूमेंट्री देखने की, तो नेशनल चैनल पे रात 10:30 बजे के बाद ये लोग डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं रिलेटेड टू सोशल इश्यूज. उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हजारों गांव जो हैं इस डैम के वजह से, इस डैम के निर्माण के वजह से वो लुप्त हो गए. ओके, और जो एक समय में कई कई एकड़ जमीन के मालिक थे, उनको जो है ना तो रिलोकेट किया गया और ना ही उनको मुआवजा मिला. सरकार ने अपने तरफ से मुआवजा घोषित किया, लेकिन जो मिडलमैन थे उन्होंने जो है इसको रख लिया था. ओके, एंड द लेडी, ओके, टेल मी इफ इट इज करेक्ट और रॉन्ग. मेधा आप्टे है? इज इट मेधा आप्टे? नो मैम. देन नो मैम. मेधा पाटकर. यस मैम. इट इज पाटकर. ओके, देखो, जब मैं बोलती हूँ ना तो एक एक बोलना शुरू कर देते हैं, उसके पहले इनके नहीं आता है, बस हिंट मिलने की देरी है. ओके, सो यू सी, इट इज मेधा पाटकर, the lady who raised her voice against the construction of this dam. And we see that इस डैम का निर्माण बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया. ओके, उन्होंने इसका, तो ये जो बांध जो बनते हैं, नदियों के ऊपर जो बांध बनते हैं, इसके वजह से जो आदिवासी लोग जो हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है ना, उनके भी जो है बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, वो सारे क्षेत्र जो है चले जाते हैं इन बांध के बनने में. ओके, आई एम सेंडिंग यू द लिंक फॉर अटेंडेंस.
Okay, ma'am. The tribals, they have been removed from their homeland. When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. ठीक है ना? और अगर गलती से भी अगर वो इसमें निवास करने का सोचते हैं तो उनको एनक्रोचर्स कहा जाता है. एनक्रोचर्स का मतलब होता है जबरन जो किसी चीज को हथियाने की जो कोशिश करता है उसको हम एनक्रोचर्स कहते हैं. Okay, by force you are entering the area and by force you are trying to utilize the resources of that area. Okay, that is why you are called the encroachers. Losing their lands and access to the forest means that tribals lose their main sources of livelihood and food. Okay, so we see that अगर इनको ये जमीनें इनसे छीन ली जाती है तो उनकी जीविका के स्रोत को भी हम छीन ले रहे हैं और साथ ही साथ जो है हम उनके खाने का जो खाने के लिए जो स्रोत है, ओके, द फूड, ओके, वी आर टेकिंग अवे द फूड फ्रॉम देम. National anthem. Stand. See, one word is given in your book and this is militarized. Militarized का मतलब क्या होता है? देखो, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारा, ओके, उत्तर पूर्वी भारत जो है, वहां पे हम देखते हैं कि आतंकवादी संगठन जो है, ओके, ये सारे जो है वहां पे सक्रिय है. ओके, तो इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि इन आदिवासियों को अगर मान लीजिए जैसे कि नागा ट्राइब हो गए, ओके, और भी जो मिजो ट्राइब हो गए हैं और भी जो ट्राइबल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अभी भी रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग जो है इन आतंकवादी संगठनों की वजह से जो है सरकार के निशाने पे आ जाते हैं. एक ऐसा ही आतंकवादी संगठन है उल्फा. ओके, उल्फा जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही सक्रिय है. ओके, सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्फा? हर्षित, फुल फॉर्म ऑफ उल्फा? Nobody. मैम किसका है? उल्फा, ULFA. मैम उल्फा. हाँ, उल्फा बुक में लिखा होगा. मैम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. हाँ, पुराने बुक में लिखा मैम है. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ, ओके, फ्रंट ऑफ असोम, ठीक है ना, असम को असोम कहा गया है. सो सी दिस, ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच एक्टिव इन द नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेशली असम. ओके, एंड व्हाट यू सी इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ओके, इट इज एन आर्म्ड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, it is an armed separatist organization. It is an armed separatist. और इनका मानना, इनके डिमांड्स क्या है? इनके डिमांड्स है अपने लिए एक अलग राज्य की कामना करना. ओके, ये लोग सरकार से अपने लिए जो है एक अलग राज्य चाह रहे हैं. इट इज एन आर्म्ड सेपरेटिस्ट, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम. ऑपरेटिंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम. ओके, और इसको कुछ लोगों ने मिलके जो है स्टार्ट किया था. ओके, लेकिन इनकी गतिविधियां, ओके, ये लोग जो है आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का जो है प्रयोग करते हैं. ये लोग हथियारों का प्रयोग करते हैं और इनके जो तरीके हैं, ओके, वो शांतिपूर्वक नहीं है. इसीलिए इनको जो है हमारी सरकार ने जो है, भारत की सरकार ने इनको एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको घोषित कर दिया है. ओके, I am reading out, just pay attention. Okay, it was founded on 7th of April 1979. Okay, at Shiv Sagar. It was founded on 7th of April. 7 अप्रैल, ओके, 1979 at शिव सागर. शिव सागर जो है जगह का नाम है. यहाँ पे इसका जो है, इसकी जो है शुरुआत की गई थी. ओके, एंड यू सी इट बिगैन इट्स ऑपरेशन. ये सक्रिय हुआ 1990 में. 1990 में जब ये सक्रिय हुआ उसी वक्त जो है भारत की सरकार ने जो है इसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया था. इसको शुरुआत करने वाले लोग थे परेश बरुआ, अरविंद राजकोहा, ओके, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहैन और बुद्धेश्वर गोगोई. ठीक है ना, इसका इमेज मैं आपको भेज दूंगी, आप रीड कर लीजिएगा. तो ये जो संगठन है उल्फा जो है ये वहां पे सक्रिय रहती है और ये बहुत सालों से वहां पे सक्रिय है. आज के डेट में भी जो है ये सक्रिय है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से ये पहले थी. ओके, और इन्होंने हमारे देश के बहुत सारे लोगों को जो है मारने की कोशिश की है.
ओके ये लोग अपनी बात जो है मनवाने के लिए जो है बहुत सारे लोगों का जो है असैसिनेशन इनके नाम जाता है. दे हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ आवर country. Okay, and they are operating with the help of China. इनको बढ़ावा देने वाला जो है हमारा पड़ोसी दुश्मन जो है वो चाइना है. चाइना की मदद से जो है ये लोग वहां पे नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं. ओके और इनके वजह से ट्राइबल्स की स्थिति और दयनीय हो गई है. ट्राइबल्स अपने परिवेश में नहीं रह पा रहे, उनको भी जो है आतंकवादी समझा जाता है. और हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है हमेशा वहां पे सक्रिय रह रही है. क्यों? अगर नहीं रहेगी तो ये लोग कब आके सिविलियंस को अटैक कर देंगे, सिविलियंस को मार देंगे, nobody knows. Okay, so we see that और इसके सहयोगी दल हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसके सहयोगी दल हैं और बर्मा बेस्ड कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी इसके सहयोगी दल है. ठीक है ना? ओके अब देखो इसकी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने तरफ से बहुत सारे मुहिम स्टार्ट किए थे. ऑपरेशन बजरंग नवंबर 1990 में स्टार्ट हुआ था. उसके बाद ऑपरेशन राइनो सितंबर 1991 में हुआ. उसके बाद ऑपरेशन ऑल क्लियर दिसंबर 2003. अगेन ऑपरेशन राइनो 2 एज अ ओके it was started and the government has banned these people. इनकी टोटल संख्या, the total strength of the members is 3000. ठीक है ना? आज के डेट में इनका टोटल स्ट्रेंथ जो है 3000 है. ओके सो वी सी दैट और इन्होंने एक और संगठन का जो है शुरुआत किया है और उस संगठन का नाम है संयुक्त मुक्ति फौज. संयुक्त मुक्ति फौज की स्थापना इन्होंने 1996 में की थी. और इनका जो मेन प्रॉब्लम है, इनका मेन प्रॉब्लम यही है कि ये लोग जो है अपने लिए एक अलग राज्य चाह रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि हमारे देश को जो एक समय में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उसको एकजुट किया, ओके अलग अलग राज्यों को जोड़ के एक कॉमन राष्ट्र का निर्माण करवाया. अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. और आप देख सकते हैं कि ओके विद इन द लास्ट 5 to 7 years we have seen many new states have been formed. Okay, Madhya Pradesh has been divided to form what? Which new state has been formed? मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके कौन से राज्य की स्थापना हुई है? बोलो. मैम उत्तराखंड. हाँ, उत्तराखंड मध्य प्रदेश में चला गया. क्या ज्योग्राफी है जी आपका? हाँ, मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके कौन से नए राज्य की स्थापना हुई है? वेरी गुड, इट इज छत्तीसगढ़. ओके सॉरी मैम. हाँ, इट इज छत्तीसगढ़. देन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. मैम उत्तराखंड. हाँ, अभी तो हर्षित बोलोगे. ठीक है ना? देन यू सी ओके बिहार को विभाजित करके क्या बना है? झारखंड. झारखंड. ओके वी सी झारखंड. अगेन यू सी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड. ओके टू तेलंगाना. to form Telangana. Okay, and recently we see that Jammu and Kashmir. Okay, we see that Jammu and Kashmir has been reorganized. Okay, to form what? लद्दाख. Okay, तो देखो एक समय में जो है हम देख रहे हैं कि और कोई छूट गया? एनीथिंग लेफ्ट? हाँ बेटा, मैम मध्य प्रदेश. क्या होगा? मैम भोपाल. अबे चुप करो. ठीक है ना? यहाँ पे हम राजधानी पूछ रहे हैं तुमसे. हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे देश के बहुत सारे राज्यों को विभाजित करके उनको रीऑर्गेनाइज करके नए राज्यों की स्थापना हुई है. ओके ठीक है ना? तो देखो मध्य प्रदेश को विभाजित करके जो है रीऑर्गेनाइज करके छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है. उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ओके जिसकी राजधानी देहरादून है. बिहार झारखंड जिसकी राजधानी रांची है. उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना. तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है कि अमरावती है?
मैम हैदराबाद. Hyderabad. Okay. Hyderabad. Okay. Then you have, and then you have Leh and Ladakh. Okay. अमरावती आंध्र प्रदेश की है, ठीक है ना? Okay. Amravati is the capital of Andhra Pradesh and Telangana's capital is Hyderabad. Okay. So what we see is that Leh and Ladakh. Again, as far as Leh and Ladakh is concerned, we see that there is summer capital also. Ladakh की capital क्या है? कारगिल है. हाँ? लद्दाख की कैपिटल क्या है? हो गया. इतिहास भूगोल सब बराबर कर देंगे ये लोग. ओके. हाँ, लेह जो है, मैम लेह. हाँ, लद्दाख की कैपिटल लेह है. बढ़िया है. मैम लेह कारगिल दोनों है ना? हाँ, वही चीज कह रहे हैं. लेह का जो है 2 कैपिटल है ना बेटा. हाँ, किसका 2 Yes, कैपिटल ma'am. है? किसका 2 मैम कैपिटल? लद्दाख का. लद्दाख का 2 कैपिटल है. एक जम्मू है, एक श्रीनगर है. हाँ, समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल. You people yourself, you are confused. You find out and then you let me know. Okay, one of the states that has been formed, okay, union territories, okay, it has 2 capitals. One is the summer capital and one is the winter capital, and the other one has 1 capital. Now you find out which one. I will not let you know. Okay, so what we see is, have a look children, losing their lands and access to forest means that tribals lose their main sources of livelihood and food. Having gradually lost access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. They thus get caught in a cycle of poverty. Okay, अब ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है? गरीबी का जो चक्र है, ये कैसे तैयार होता है? देखो, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ओके, इट स्टार्ट्स द मोमेंट अ पर्सन लूजेस हिज जॉब. ओके, अ पर्सन लूजेस हिज जॉब. ठीक है ना? जैसे ही आप अपना काम जो है खो देते हैं, आप जो है गरीब हो जाते हैं. अ पर्सन इज एम्प्लॉय, जब आप क्लास 9 में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे अ पर्सन इज पुअर. ओके, एक व्यक्ति गरीब क्यों है? बिकॉज ओके, ही इज अनएम्प्लॉयड. ठीक है ना? चूंकि उसके पास रोजगार नहीं है इसलिए वो गरीब है, और चूंकि वो बेरोजगार है इसलिए वो गरीब है. इट इज जस्ट वाइस वर्सा. ठीक है ना? एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि उसके पास काम नहीं है. अगर उसके पास काम होगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी. ठीक है ना? और चूंकि एक व्यक्ति बेरोजगार है इसलिए वो गरीब है. इट इज जस्ट वाइस वर्सा. एंड साइकिल ऑफ पॉवर्टी कब शुरू होता है? साइकिल ऑफ पॉवर्टी शुरू होता है जैसे ही आप अपना काम खो देते हैं. अब देखो, ये आदिवासियों का जो परिवेश था, ठीक है ना, वही उनकी जीविका का स्रोत था. Okay, the forest were the what? The sources of livelihood. The forest, okay, were the means of livelihood. Were the means of livelihood. Okay. Now, when the tribals, they are driven away from this forest, they lose their livelihood. वो अपनी जीविका का स्रोत खो दे रहे हैं, और जैसे ही वो जीविका का स्रोत खो दे रहे हैं वैसे ही वो गरीब हो जा रहे हैं. अब जब आप गरीब होते हैं तो आपको अपने जीवन यापन के लिए क्या करना होता है? आपको अपने जीवन यापन के लिए जो है ओके कर्ज लेना पड़ता है. यू हैव टू टेक सम ओके मनी फ्रॉम द अदर पर्सन. ओके, अब चूंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप पुरानी क्लासिक फिल्में देखते हैं, ठीक है ना, मदर इंडिया जो है बहुत ये दर्दनाक मूवी है. अगर इफ यू हैव टाइम यू गो थ्रू दैट मूवी मदर इंडिया. Okay, and what you see that these people when they take debt, since they are uneducated, they don't know. Okay, मान लो साहूकार ने उनको जो है 100 रुपए कर्ज दिया. ओके, 100 रुपए कर्ज दिया, लेकिन उनकी आमदनी है ही नहीं कि वो 100 रुपए चुका सके. तो क्या हुआ? उम्र भर जो है वो उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट देते गए, लेकिन जो ओके सम है, ओके जो अमाउंट है वो उन्होंने रिटर्न नहीं किया. अब मान लो उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके बेटे ने टेक ओवर किया. ओके, अब ये जो साहूकार के पास जब वो लड़का जाएगा, ठीक है ना, चूंकि उसका पिता पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो क्या कह देगा? कहेगा कि तुम्हारे पिता ने 1000 रुपए का कर्ज लिया है. ओके,
एंड ये व्यक्ति जो है इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ये फंस के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ओके दिस मनी इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 1000 ओके, और एक पीछे जीरो लगाने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। लेकिन जब आप एक पीछे जीरो लगाते हैं ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, द मोमेंट यू ऐड अ जीरो द न्यूमेरिकल वैल्यू इट इंक्रीजेस. So what we see that these people, they are always trapped in this debt. Okay, they are always trapped in this cycle of poverty and they are not able to come out. See, 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. अब जब आप poverty chapter पढ़ेंगे, poverty line को हम हिंदी में गरीबी रेखा कहते हैं, ठीक है ना? ओके, अब ये जो पॉवर्टी लाइन है, इट इज द लाइन दैट डिमार्केट्स एक व्यक्ति को जो है नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए उसको बेसिक नीड्स चाहिए। ओके, व्हाट आर द बेसिक नीड्स? एक व्यक्ति के जो आम जरूरतें होती हैं वो क्या होता है? द बेसिक नीड्स आर व्हाट? द बेसिक food, cloth, द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन आर food, cloth and रोटी, house. कपड़ा, मकान, House. ठीक है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, House. ओके, यही हम लोग बोलते हैं ना? ओके, तो अगर एक व्यक्ति के पास जो बेसिक नीड्स हैं, ओके, रोटी, कपड़ा और मकान उसके पास है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन हमारी जो वर्ल्ड बैंक है, ओके, जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार ये 2001 सेंसस है, ठीक है ना? लेटेस्ट सेंसस नहीं बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस व्हाट वी सी, ओके, अगर आपकी आमदनी $1, ठीक है ना, अगर एक व्यक्ति की आमदनी $1 से कम होती है एक दिन में, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू अर्न ओके मोर देन $1 in a day, or if a person earns less than $1 in a day, okay, that person will be considered as poor. Okay, he will be considered as a person below the poverty line. Okay, below poverty line. BPL, आप देखते हैं कि जो लोग राशन लेते हैं उसमें BPL वालों के लिए अलग से कार्ड होता है। ओके, उनके लिए अलग से कार्ड होते हैं और सरकार आज के डेट में those who are belonging to BPL, okay, the government is providing them lots of amenities, lots of facilities just to bring them at level with the other classes of the society. ठीक है ना? समाज के जो बाकी वर्ग हैं उनके बराबर लाने के लिए सरकार देख रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन दे रही है लोगों को। अभी आपने देखा होगा कोविड के दौरान जो है फ्री में सरकार ने राशन दिया है, फ्री में, ओके, ताकि ये लोग जो है भूखों ना मरे, इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। तो सरकार ऐसी बहुत सारी मुहिम चलाते रहती है। आपने देखा होगा मोदी जी जैसे ही आए उन्होंने जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्रदान किया। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत कम दर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया गया। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के तहत एक गरीब व्यक्ति को 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। तो वी सी दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट्स मेनी स्टेप्स ओके टू टैकल द पीपल हु आर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन। तो देखो, अगर एक ट्राइबल जो है उसको अगर हम फॉरेस्ट से हटा दे रहे हैं, उसके रिसोर्सेज उससे छीन ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली गरीब हो जाता है, ठीक है ना? उसकी जीविका का स्रोत छीन जा रहा है। अब वो व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाएगा, जैसे तैसे वो अपना पेट भरेगा। अब उसके जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी संघर्ष करना होगा। तो ये जो चक्र है, गरीबी का जो चक्र है, उसी में उसकी जनरेशंस और वो फंस के रह जाएगा। Okay, now see, this leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. अब malnourished का मतलब क्या होता है? What do you mean by malnourished? बहुत सारे जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो malnourished होते हैं, कुपोषित होते हैं। ओके, malnourished का मतलब होता है कुपोषित। ओके, वो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। अब ये जो malnutrition है, malnutrition के सिम्टम्स क्या है? What are the symptoms of malnutrition? Anybody will tell me? What are the symptoms? हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कुपोषित है, एक बच्चा कुपोषित है? हम कैसे पता कर सकते हैं?
I hope you have seen the ad that was okay promoted by this campaign against malnutrition. It was promoted by Amir Khan. आपने देखा है? आमिर खान जो है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, कुपोषण के खिलाफ. See, what is malnutrition? Malnutrition is Malnutrition is the condition that results from eating a diet which does not supply a disk lead to the 2010 launch of the UNS. एकदम गूगल एकदम बोल रहा है. हाँ ठीक है ना. See, it is a serious condition that happens. Okay, it is a serious condition that happens, okay, when your diet does not contain the right amount of nutrients. Okay, जो आप भोजन ले रहे हैं, okay, उसमें जो है अगर सही मात्रा में, when your diet does not contain the right amount of nutrients. ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं, ओके, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. फैट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, ओके, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, हर एक चीज जो है वो उसमें होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए. बट हम लोग जो अगर डाइट ले रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं. और कुपोषण के शिकार जो है नॉर्मल एक औसतन ऑन एन एवरेज चिल्ड्रन, ओके, ऑन एन एवरेज इन्फेंट्स, ठीक है ना, जो जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, शिशु, ओके, और 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ओके, ठीक है ना, उनके बीच ये जो सबसे ज्यादा देखा जाता है कुपोषण के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे ज्यादा ये ग्रोइंग ईयर्स है. ठीक है ना, एक बच्चे के जो है ग्रोइंग ईयर्स इसको माना जाता है जब वो शिशु होता है, बालकाल में जब वो शिशु होता है और जब वो 5 वर्ष तक का होता है. ओके, सो दिस इज द टाइम व्हेन योर बॉडी ग्रोज. आप देखेंगे इट इज द टाइम जब आपके दांत निकलने लगते हैं, ओके, आपके बॉडी में जो है ग्रोथ होता है. एक बच्चा जो है पहले घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, और भी बहुत सारे ग्रोथ होते हैं बॉडी के. ओके, बट इस समय में अगर राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर जो है उस हिसाब से फिजिकली ग्रो नहीं कर पाएगा. तो जो ट्राइबल्स होते हैं और जो बाकी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते. क्यों? क्योंकि उनके लिए जो है 2 वक्त का खाना, डबल क्लिक करबो ना तो बड़ा हो जाएगा. 2 वक्त का खाना इकट्ठा करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. ओके, तो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देना तो उनके लिए संभव ही नहीं है. आप देखेंगे कि ये जो कुपोषण के जो शिकार जो बच्चे होते हैं, उनके पेट निकले हुए होते हैं, उनके जो है पेट निकले हुए होते हैं और हाथ पांव जो एकदम सूखे सूखे लकड़ियों की तरह होते हैं. क्यों? क्योंकि एक समय में, ओके, जब उनको दूध मिलना चाहिए, उनके शरीर को जो है दूध मिलना चाहिए, कैल्शियम उनके शरीर में जाना चाहिए, उस समय उनके पेरेंट्स उनको दूध नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. दे स्टार्ट गिविंग देम फूड ग्रेन्स. वो उनको अनाज खिलाना शुरू कर देते हैं. अब अनाज खाने की वजह से बच्चों के पेट निकल आते हैं और बाकी शरीर का विकास जो है वो नहीं हो पाता है. ओके, सो वी सी दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ malnutrition. ओके, द फर्स्ट वन इज वेस्टिंग है. ओके, वेस्टिंग क्या होता है? ओके, जब अपने वजन को आप घटाते हैं, ठीक है ना, जब आप अपने वजन को घटाते हैं, ओके, लंबा होने के लिए, व्हेन यू लूज वेट फॉर हाइट, ओके, यू बिकम a victim of wasting. Then you have stunting. स्टंटिंग ग्रोथ होता है एक. ओके, ये कब होता है? आप ठिंगने हो जाते हैं, ठीक है ना, नट्टू खट्टू हो जाते हैं, शॉर्ट एंड स्टाउट. When it happens when you lose height, ओके, जब आप समय के हिसाब से, आप उम्र के हिसाब से लंबे नहीं होते हैं तो आप स्टंटिंग के शिकार हो जाते हैं. देन ओके, द अदर वन इज अंडरवेट. अंडरवेट बच्चे होते हैं. ओके, कुछ बच्चों को जो है बाय बर्थ जो है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है. मे बी उनके हार्ट में होल है, मे बी एनी अदर प्रॉब्लम्स. ओके, सो
In that case, what happens? My daughter, she too had a hole in her heart, okay, at the center of her heart, 2.5 centimeter hole. And as because of the hole in the heart, okay, her body was not gaining weight. उसके शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा था. 6 महीने पे भी अगर मैं उसका वजन लेती थी 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे करके, which is not normal. Okay, at last I had to go for an open heart, okay, of my daughter. Now she is normal. Okay, so you see, this is another symptom. The other symptom is deficiency in vitamins and minerals. Okay, जब आपके शरीर में deficiency होती है vitamins और minerals की, deficiency in vitamins and minerals, तो आप जो है कुपोषण के शिकार होते हैं. Okay, this can be avoided by taking extra supplements. Okay, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का एक सिरप आता है जो अक्सर बच्चों को दिया जाता है, that is called Dexorange. Okay, it is called Dexorange, which is usually given to children suffering from